Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing well. Today we will start our new subject, computer. So let me tell you about the book and the contents. In modern times the use of computers has immensely increased, and one can safely say that it would continue to increase. This fact necessitates the children should be introduced and formalized with the computer at an early age in a practical way. So they should be at home and its use when they are in practical life to meet this end. The series of book has specifically been designed with the aims of impart learning in a simplified and fun-loving way. The entire book is activity based to keep the children's interest alive. This would also help them learn about computer and in an enjoyable manner at a time tested technique of learning. So the contents of this book are very easy, students friendly, and based on National Curriculum 2007. The special features of this book are activity based lessons. Lessons are well supported with activities. The second is attractive illustration. The book is equipped with attractive illustrations. The focus of the book is on the practical of the computer, and it also includes interesting facts and information about the topic being covered. And at the end of each unit, different lab activities are given. So projects are included in the units of application software and exercises to access the learning of the student. Exercises are given at the end of each unit. So let's discuss about contents. Here is your syllabus. We have almost 4 units in our computer subject. First unit is introduction to computers. Second is introduction to Windows. The third is commonly used software, and the fourth one is the Internet and World Wide Web. So here we will divide these units into two parts for first term and second term. In first term we include just 2 chapters, which is introduction to computers and introduction to Windows. Which topics are included in chapter 1? What is computer? Components of computer, and how does computer work. Okay, we have these 3 major topics, and इसके अंदर फिर सब टॉपिक्स हैं, तो हम ये पढ़ेंगे. So today we are going to start our video lectures for this subject, computer. Before we start the proper content of this subject, we have to understand the basics. Okay, many of students do not have interaction with computers before that. This way it is very it is my responsibility that every student easily understand, though he or she does not have any prior knowledge about computer. So let's start the content of this subject. The first as you saw, that first question is what is computer. Okay, so here we are going to see that what is computer. Student learning outcomes. Okay, our first topic is introduction to computer. Student learning outcomes. After completing this unit, student will be able to define computer, define data and information, explain the advantages of using computers, define hardware and software, know the difference between hard and software, no input devices, no system unit, no storage devices, no output devices, no communication devices,
know how a computer works, describe 4 basic operations performed by a computer. So here is the introduction. Computer is a machine that helps us in our daily life. In this unit, students learn definition of computer, advantages of using computer, data and information used in a computer. They will also learn about input, processing, output and storage devices and operations. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें ये बताया गया है कि जिस वक्त आप लोग इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो आप क्या क्या चीज़ें जानेंगे और आप किस काबिल हो जाएंगे। आप कंप्यूटर को डिफ़ाइन कर सकेंगे, डेटा और इन्फॉर्मेशन और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को आप डिफ़ाइन कर सकेंगे। सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सिंपल डेफिनेशन क्या है, एक कंप्यूटर क्या है। तो नॉर्मली जो हम डेफिनेशन, रफ डेफिनेशन जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर के लिए, दैट इज़ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा, ओके, दैट एक्सेप्ट्स डेटा, प्रोसेस इट एंड देन कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको रफ डेफिनेशन एक उसकी दी कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, ये हम बिल्कुल नॉर्मली एक रफ डेफिनेशन यूज़ करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक बिजली का आला है, दैट एक्सेप्ट्स डेटा, जो कि डेटा एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और उसको कन्वर्ट करता है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। व्हाट इज़ डेटा, ये वर्ड आप बार बार सुनते होंगे कंप्यूटर की क्लासेस में, डेटा। तो मैं आपको डिफ़ाइन करती हूँ कि व्हाट इज़ डेटा। एक्चुअली डेटा इज़ रॉ फैक्ट। डेटा क्या है हमारे पास, रॉ फैक्ट है। रॉ फैक्ट मीन्स अनप्रोसेस्ड आइटम, ठीक है, जिसके ऊपर काम नहीं हुआ। यहाँ भी जैसे कि आप देख सकते हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो इस पर हम आगे बात करेंगे। अभी हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर। व्हेन समवन सेज द वर्ड कंप्यूटर, यू थिंक ऑफ अ मशीन दैट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, जब आपको कोई कंप्यूटर की बात करता है कि कंप्यूटर क्या है, तो आपके माइंड में ये चीज़ आ जाती है, अ मॉनिटर, अ सिस्टम यूनिट एंड कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, दिस इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर। ये क्या है, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। इसको हम बोलते हैं पीसी, जो नॉर्मली हर किसी के घर में अवेलेबल होते हैं, ऑफिस में होते हैं, स्कूल, बैंक्स में होते हैं। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विथ विच प्रोसेस रॉ डेटा, इनपुट। सो व्हाट इज़ डेटा, डेटा इज़ इनपुट। व्हाट इज़ इनपुट, इनपुट वो चीज़ है जो कमांड हम कंप्यूटर को देते हैं, उसको, वो अनप्रोसेस्ड आइटम को वो प्रोसेस करता है एक्सेप्ट करके, और उसके बाद वो हमें जो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करके देता है, ये उस रॉ डेटा को कन्वर्ट करता है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। तो उसे हम क्या कहते हैं, डेटा, इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विच इज़ कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, डेटा, रॉ डेटा जब हम देते हैं कंप्यूटर को, तो वो क्या कहलाता है, इनपुट। एंड जब वो उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें देता है, तो उसको क्या कहते हैं, आउटपुट। लेट्स सपोज हियर 2 + 3, ओके, ये हमने कमांड दे दी कंप्यूटर को कि 2 + 3। तो वो इस रॉ इंफॉर्मेशन को, इस रॉ डेटे को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो आंसर क्या आएगा, 5। यस, it will be answer. And also stores output for later use. It always perform according to the given instructions. उसको जो instructions हम देते हैं वो उसके ऊपर काम करता है। There are different categories of computers. Some of them are given below. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर इसी तरह का हो। सही है, कंप्यूटर हमारी लाइफ में बहुत मायने रखता है, बहुत उसकी ज़रूरत होती है। इवन हमारे तो ऑलमोस्ट सारे काम कंप्यूटर के थ्रू होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर इसी फॉर्म में होगा। इवन आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो भी कंप्यूटर की फॉर्म है। तो लेट्स सी, पाम टॉप, ये जो है इसे भी कंप्यूटर कहते हैं। ये आपका सेल फ़ोन जो होता है जिस पर आप वीडियोज़ अब देखते हैं, ये भी कंप्यूटर की एक टाइप है।
Laptops are the type of computer, tablet PCs एंड सुपर कंप्यूटर्स, ये बहुत हैवी कंप्यूटर्स होते हैं, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं. स्मार्टफोन्स एंड पर्सनल कंप्यूटर. तो जी ये हैं कंप्यूटर की टाइप्स डिफरेंट. इनको हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे. तो आज आपने पढ़ा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर की डेफिनेशन कि ये रॉ डेटा को, अनप्रोसेस डेटा को लेता है और उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करके हमें आउटपुट की शक्ल में वापस देता है. होप दैट यू विल कंटिन्यू विद मी और आप इसको अच्छे तरीके से आगे मज़ीद इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी करेंगे ख़ुद से भी और मेरे साथ इसको शेयर करेंगे. और हम इसको नेक्स्ट जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उस पर हम डेटा के बारे में बात करेंगे और बहुत सी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे इन इसके ऊपर कि ये डेटा क्या होता है, कहाँ कहाँ कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, टेलीकॉम में, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, सॉफ्टवेयर हाउसेस में, डिफेंस एंड फ्रीलांसिंग में. और अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान इज़ हाईली रैंक्ड कंट्री इन फ्रीलांसिंग तो ये गलत नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब मोस्टली सारे काम कंप्यूटर्स पे होते हैं. तो ये कंप्यूटर जो है हर तरह की फील्ड में इन्वॉल्व है. तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसके ऊपर आप खुद भी सर्च करें. ये एज अ होम टास्क मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको सर्च करें. इससे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो जब हम इंशाल्लाह रिटन वर्क करेंगे तो थ्रू वीडियोस और वॉइस क्लिप्स आप मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या समझ आया और इसके अलावा आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिली. तो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और डिटेल से इसके डेटा इंफॉर्मेशन और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स पे हम बात करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.